Jai Hind, dear student. Today we'll learn a new topic, namely electric dipole. Before teaching this topic, firstly we would like to discuss what is dipole. When two different poles come into consideration at a very small separation, this composition are called dipole. And whenever we talk about electric charge as a dipole, that is called electric dipole. We can see such type of dipole around us in form of compound like HCl, NaCl, H2O. Suppose that there is a compound namely HCl, H plus and Cl minus. This work like electric dipole, and whenever we place it in external electric field, then it has own phenomena. So analyze the phenomena. Today we will study about electric dipole. See the definition of electric dipole. When two equal and opposite charges are fixed at finite and short distance, called electric dipole. Here two charges, that is minus q charge and that is plus q charge. Here we are just taking these two charges as a point charge. Means ये जो two equal and opposite charges है, it should be point charge. It should be point charge, right? So if we consider this is a dipole system, electric dipole system. So net charge is equal to 0. Now the separation between these two fixed charges is called length of electric dipole. Length of electric dipole. And the line passing through these two charges is called axis of dipole, and this is the middle point of this dipole. If a line passes from middle point and perpendicular to the axis of dipole, this is called equator. And any point taken for analysis at this position is called equatorial position, and any point taken for analysis at this position is called axial position. So due to this electric dipole, there exists a new phenomena, new physical quantity, that is called electric dipole moment. Sometimes we call it dipole moment. It is denoted by Pe and simply P. See, it is defined as the product of magnitude of either charge and distance between the charges is called electric dipole moment. See, this is 2-point charge, minus q charge and plus q charge. सो दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और इस दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, लेंथ ऑफ डाइपोल, दोनों के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी and always directed from negative charge to positive charge. This is suppose that this is negative point charge and this is positive point charge. So it is always directed from negative to positive point charges along the axis of dipole. Imply that Pe is equal to Q into 2L. If we express it in form of vector, so we can write it Q into 2L from minus Q to plus Q. Now its SI unit is the SI unit of
charge is coulomb and length is meter. So we can write coulomb meter, and practical unit is dBi, denoted by D, and 1 dBi is equal to 3.3 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Suppose we have a system, then in this system there may be many dipoles due to charge. Let us suppose if you take a sample of hydrogen chloride, so there may be more than one molecules of HCl. So there may be more than one dipoles. So there may be more than one electric dipole moment. So if we wish to find net dipole moment of the system, then what we will do? In this case, we just find the dipole moment of all system, all dipoles, and apply the concept of vector addition, because electric dipole moment is a vector physical quantity. So there are more than two dipole in a system, then net electric dipole moment PE net will be vector sum of all individual electric dipole moment. Right? Now we can take an example. Suppose this is an equilateral triangle of very small side A, and some point charges has been placed at the vertices of the equilateral triangle. Here is Q charge, here is also Q charge, but here is minus 2Q charge. So we have to find net electric dipole moment. Right? See, firstly we will try to make number of possible dipoles from the given configuration. Right? Solution. This was the question. Now for solution I am taking same figure. If this 2 point charges has been divided into two parts, minus Q charge and minus Q charge, then there is one pair minus Q and plus Q, and this is one pair. So there will be two different electric dipole, and electric dipole due to this pair will be directed in this direction, and electric dipole moment due to this pair will directed in this direction. This is an equilateral triangle, so angle between these two dipole moment will be 60 degree. So P1 is equal to Q into A and P2 is equal to Q into A. What we have seen, both dipole moment have same magnitude. So here we have to find net dipole moment. So from the concept P net, we can write P1 vector plus P2 vector. So magnitude of this net dipole moment will be under root P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 into cos theta. If we put the value, then we can find two into Q into A into cos 30 degree, and here will be QA into root 3.
and direction of net electric dipole moment will be this, because these two vector have same magnitude, so resultant vector will go from middle point. Now we will find electric field intensity due to electric dipole and electric dipole system. And there is a case, calculation of electric field intensity due to an electric dipole at different position. At axial position means कि उसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट लिया गया है, एट इक्वाटोरियल पोजीशन एंड एट जनरल पोजीशन मीन्स कि ऐसा पोजीशन जो न तो उसके एक्सिस पर लाइज करता हो न तो उसके इक्वाटोरियल पोजीशन पर लाइज करता हो। तो हम एक एक करके सीखते हैं। Now we have an electric dipole whose electric dipole moment is q into 2l directed from minus q2 plus q2 from figure shown, and we have to find the expression of electric field intensity at a distance r from the middle point of the electric dipole, right? So here there will be two different electric field due to this positive charge and due to this negative charge. As we are very clear from sign convention, due to positive charge electric field directed in this direction, while due to this negative charge electric field will directed in this direction. So we can express it due to positive charge and due to negative charge, right? If we assume this is positive direction and this is negative direction, then net electric field intensity E net, it is also called axial, right? So it will be due to this positive charge plus due to this negative charge, right? So this is due to negative charge. So what will be separation between this point and this point, right? There is R from here, but we have to find the separation between these two charges Q and this point of observation. So this will be R minus L. So we can write it K Q by R minus L to the whole square, right? Here we are writing this expression in vector form, so we will use sign, and for this sign is negative because it has been taken with negative sign, so it can be written as KQ by, what is the separation between this point and this point charge? The R plus L, R plus L, okay? So we can write it KQ by R square minus L square to the whole square into R plus L to the whole square minus R minus L to the whole square. Let us solve it. KQ into R square plus L square plus 2RL minus R square minus L square plus 2RL by R square minus L square to the whole square. These two terms get cancelled. So this expression E net can be written as KQ into 4RL by R square minus L square to the whole square. Also we can write it K into 2R into Q into 2L
by r square minus L square to the whole square. As you know from the definition of electric dipole moment, it can be written as P. This is positive, this term is positive, so we can write it E net is equal to K into 2r into Pe vector by r square minus L square to the whole square. What you have seen on axial position, net electric field intensity always directed in the direction of electric dipole moment of the dipole. Not only for this point, if we put any point here, also net electric field directed in this direction. So we can write this expression and we can say on axial position, electric field due to dipole always directed in the direction of the electric dipole moment. So also we can write it E net, E axial is always parallel to Pe vector. Now let a case. If R is far greater than as compared to L, so R square minus L square can be written as R square. Therefore, E axial can be written as K into 2r into Pe vector by r to the power 4. So E axial is equal to 2k into Pe vector by r. What we have observed that E axial is directly proportional to Pe and inversely proportional to R Q. Well, now we have to find the second case. Electric field intensity due to an electric dipole at its equatorial position. Let us consider this is an electric dipole and this is the equator, and we take a point A at distance r from the center of the dipole, and here we have to find electric field intensity. So firstly, I would like to find electric field intensity due to this charge. Let us connect these two lines, and due to this charge electric field will directed in this direction, because due to negative charge electric field always directed towards the negative charge, and due to this charge electric field will be directed in this direction, right? If I suppose this is due to positive charge and this is due to negative charge. Now we consider a horizontal axis as a x-axis and the vertical line as a y-axis. If I say this is angle theta and this is angle theta, so also this will be angle theta and this will be angle theta, right? And this is your L and this is your R. So this distance can be written as R square plus L square. Also it can be written as R square plus L square. So it has two components, here and here. So here we can write K Q, I suppose it x by x square into sine theta, and here KQ by x, KQ by x square into sine theta, right?
that is the component of this electric field and that is the component of this electric field. This get cancel, and here we have two component, 2k q by x square into cos theta. One of the component of this electric field and another is the component of this electric field. मतलब कि जब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसके जो दो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, दोनों को हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो एक ऊपर कंपोनेंट और एक नीचे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और बचा ये दोनों का कंपोनेंट सेम लाइन के लॉन्ग। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, जिसको कि हम ई एक्सियल कह सकते हैं, हमें क्या मिला है भाई, 2kq बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हम सबका वैल्यू रख देते हैं। इसको सॉरी ये एक्सियल नहीं है, इसको इक्वाटोरियल कहते हैं, इक्वाटोरियल। चलो मैं इसको इक्वाटोरियल कहता हूं। तो बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा 2kq एक्स स्क्वायर की जगह पर जब इसको रखेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, मींस एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. So this expression in magnitude can be written as 2k into q into 12 by r square plus l square to the power 3 by 2, and it can be written as k into pe by r square plus l square to the power 3 by 2. Here what we have observed, electric dipole moment of this electric dipole is directed here, p is equal to q into 12, जबकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जस्ट इसके अपोजिट है। देखेंगे ये ऐसे था और ये ऐसे है। सो हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि EQ इंटू पी वेक्टर, मीन्स अगर इस वेक्टर फॉर्म को हम देखें तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू पी वेक्टर। तब अब रिलेशन हमको ये इक्वाटोरियल का जो रिजल्ट मिला है, इधर मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू माइनस के पीई बाई r square plus l square to the power 3 by 2 if r is far greater than l. So it can be written as EQ is equal to minus KPE by RQ. Now what was on axial position? 2k PE vector by RQ. So there is a relation between the expression of electric field intensity on axial position and on equatorial position. E axial is equal to minus 2 into E equatorial. ये बहुत काम करेगा। अब इससे हमको क्या फायदा होगा, कभी कभार हमें एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और उतना ही सेपरेशन पर कहेगा कि आप इक्वाटोरियल पोजीशन पर निकालें। तो आपको पता है कि इक्वाटोरियल पोजीशन पर एक्सियल पोजीशन का हाफ होगा, तो क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, राइट। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी में इसका प्रूविंग नहीं है और हमें नहीं कराना चाहिए,
बट हर जगह हर बुक्स में ये मिल जाता है और कभी कभी एग्जाम्स में भी ये पूछ देता है कि जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालें ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे क्या है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसका और यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, और कह रहे हैं कि किसी पोजीशन है जिसका सेपरेशन है r इसके सेंटर से और थीटा एंगल पर एक पोजीशन लिया गया है, इस पोजीशन को कुछ लोग r थीटा भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, हमको कंफ्यूज और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने दो एक्सप्रेशन निकाल लिया है, ऑन एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन, उसके हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन को बहुत ही इजीली निकालेंगे, बहुत इजीली। जरा देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इधर एक्सटेंड कर दिया। अब मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, राइट। अब ये परपेंडिकुलर इस पर है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर हो जाएगा PE साइन थीटा और एक इधर हो जाएगा PE कॉस थीटा, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और मैंने क्या देखा कि अब ये जो पॉइंट है पहले वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कोलिनियर है, जबकि दूसरे वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर है एक और एक एक्सियल पोजीशन पर है, और दोनों की वजह से निकालने हमको आता है। तो इसके वजह से अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पर, इसके वजह से इसको मैं कहता हूँ P1 और इसको मैं कहता हूँ P2, राइट। तो इसके वजह से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2K P1 by R3 इस P1 के लिए इस पॉइंट पर। अब जरा देखेंगे, ये तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहें, इसके मिडिल पॉइंट से जा रहा है, तो अगर इक्वाटोरियल पोजीशन पर अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं कह देता हूं E1 और इस वाले एक्सप्रेशन को मैं कह देता हूं E2। सो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर है, तो क्या लिखेंगे K PE by R3। जरा देखेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर दो कंपोनेंट मिल गया है, तो अब इस दोनों का अगर हम वेक्टर सम करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इस तरीके से जाएगा, ये क्या हो जाएगा E नेट, राइट। सो E नेट एट पॉइंट ए जनरल पोजीशन पर ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये दोनों वेक्टर E1 एंड E2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, राइट। और इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, E1 का वैल्यू क्या मिला है हमको, E1 का वैल्यू मिला है 2K P1 बाई R3 का होल स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू क्या मिला है K P2 बाई R3 का होल स्क्वायर, राइट। इसमें से क्या हमको कॉमन मिल सकता है, कॉमन मिल सकता है 2K बाई R3, अंदर में क्या बचेगा हमारा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। आई थिंक P1 और P2 का वैल्यू हमको पता है। P1 का वैल्यू क्या है भाई, P1 का वैल्यू है 2K R3, P1 का वैल्यू हम लोगों का है P E cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PE
सॉरी, हमने यहाँ पर 2 को छोड़ दिया था, ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये 2 बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, केवल k बाहर आएगा और RQ बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 P1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, PE cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस PE sin थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, E नेट, तो हमें क्या मिलेगा, K बाई RQ। अब या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या तो कॉस को साइन में, आपके जिसमें इच्छा हो बदल सकते हैं। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो जब साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, पी चलो बाहर आ गया हमारा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस, सॉरी ये 4 है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज E नेट इज इक्वल टू K PE बाई RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ विथ the help of this expression we can find any value. Suppose that if there is general position, then what will be theta? 0 degree, as we can find the expression on axial position 2 kPe by RQ. If we are at equatorial position, then theta will be what? 90 degree. So this is very important result. Now, I would like to find the direction of this net electric field intensity. Suppose the direction of this net electric field intensity is alpha from the radius vector. इस लाइन से अल्फा एंगल बना, इस लाइन से जरा ध्यान देंगे, जिस लाइन पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है उस लाइन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अल्फा। सो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, tan अल्फा बराबर यही ना लिखते हैं, याद करो वेक्टर को, जब इस तरह से इधर आता था y, इधर आता था, इधर आता था y, इधर आता था a और इधर आता था रिजल्टेंट वेक्टर, तो tan अल्फा बराबर हम लोग क्या लिखते थे, y बाई x। तो यहाँ पर क्या है, y के जगह पर E2 और x के जगह पर E1, तो हम लोग tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, E2 बाई E1। E2 का क्या वैल्यू हमको मिला है, E2 का देखो जरा क्या वैल्यू मिला है भाई, E2 का वैल्यू मिला है K PE बाई RQ और E1 का वैल्यू है 2K PE बाई RQ। सो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इधर है आपका PE cos थीटा, इधर है sin थीटा और इधर है cos थीटा। एक्सप्रेशन हम पूरा लिखते हैं, सो हमको क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ tan थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। ओके, थैंक यू। Now we'll place an electric dipole in uniform electric field. There may be many cases. There you have to find net force experienced by the electric dipole, net torque experienced by the electric dipole, and nature of motion of the electric dipole. Right? So we discuss one by one. Suppose there is a uniform electric field of strength E, and an electric dipole has been placed inside the electric field, okay, and this is negative charge and this is the positive charge, and here we can see in diagram the electric dipole moment is directed along the electric field intensity. So now you can find net force experienced by the electric dipole. Force experienced by due to this positive charge will be in the direction of electric field, while force experienced by this negative charge will be in the directly opposite to the electric field. So net force experienced by this electric dipole
due to positive charge plus due to negative charge will be Q minus QE is equal to 0. Means in this case, net force experienced by the electric dipole remain absent. So presently it is in translational equilibrium. Now we rotate this electric dipole by an angle theta and see the situation. In this case, the force experienced by positive charge is in the direction of electric field, while the force experienced by the negative charge is directly opposite to the electric field. Once again, net force experienced by this electric dipole remain absent. So we can conclude that if an electric dipole is placed inside a uniform electric field, then net force experienced by the dipole will be always 0, and hence we can say it will be in translational equilibrium. So let us calculate torque, right? अब मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूं और जहां हमें निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में प्रूविंग के लिए भी आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। सो हम अगर कहें कि ये कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू ई, और ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल का कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई। रेडियस, अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका रेडियस वेक्टर इधर ये वाले OA, अगर हम कहें OA वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है थीटा। और फिर ये मैं देखता हूं कि अगर इसको मैं रेडियस वेक्टर कहता हूं इस तरीके से, और ये जो फोर्स लग रहा है उससे कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये भी कितना एंगल बना रहा है थीटा, राइट? तो इसमें टॉर्क होगा कि नहीं, जरा देखेंगे। अगर मैं कहूं कि फोर्स इधर लग रहा है, ये रेडियस वेक्टर है और दोनों सेम प्लेन में है, बट दोनों कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब कि दोनों के बीच कुछ न कुछ होगा और जिसके वजह से टॉर्क डेवलप होगा। तो मैं लिखता हूं कि नेट टॉर्क experienced by the electric dipole is torque due to positive charge plus torque due to negative charge। मैं मानता हूं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मिडल पॉइंट पर फिक्स किया गया है और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है तो हम इस पॉइंट के अबाउट इस पर टॉर्क निकालते हैं। सो कैलकुलेट कर लीजिए, टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी व्हाट, इसको क्या लिखेंगे OA क्रॉस FQ, राइट? अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन इसका कैसा होगा, जरा देखेंगे। मैं रेडियस वेक्टर पर अपने राइट हैंड थंब को रखता हूं और फोर्स वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्स करता हूं, तो मेरा थंब किधर जा रहा है प्लेन के अंदर, इनटू द प्लेन। सो अगर इसको हम अगर तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं OA इंटू FQ साइन थीटा। डायरेक्शन इनटू द प्लेन को हम लोग क्या लिखते हैं क्रॉस, इनटू द प्लेन को क्रॉस। और हम इसको इधर से जो रोटेट कराए हैं, मैं मानता हूं कि मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया, मतलब ये डाइपोल पहले ऐसे था और मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हल्का सा रोटेट करा दिया है। अब फिर से मैं टॉर्क निकालता हूं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो हमें क्या मिलेगा OB वेक्टर क्रॉस फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे OB इंटू FQ, वन सेकेंड दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, लेकिन मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो फिर से हम रेडियस वेक्टर पर अपने राइट हैंड को रखते हैं और फोर्स वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्स करते हैं, तो हम किधर जाता है प्लेन के अंदर, तो ये भी क्या होगा क्रॉस होगा। अब नेट अगर हम निकालें, इसके वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अभी,
So tau net is equal to OA, एफ क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई साइन थीटा क्रॉस प्लस ओ बी इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा इंटू क्रॉस। अब हमें ओ ए और ओ बी का वैल्यू एल इंटू क्यू ई साइन थीटा क्रॉस प्लस एल इंटू क्यू ई साइन थीटा इंटू क्रॉस। इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा इंटू क्रॉस। अब Q इंटू 12 क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो PE इंटू E इंटू साइन थीटा इंटू क्रॉस, नेट टॉर्क मिला, राइट। अब इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखेंगे, PE क्रॉस E इस तरीके। फिर से इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, PE साइन थीटा इंटू क्रॉस। क्रॉस करने का मतलब है अगर हम इस टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो ये जो टॉर्क होगा वो उसकी टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो जो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मीन्स की जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीस्टोरिंग नेचर का होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कराएंगे तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। और हमें फार्मूला मिल गया। अब जरा इस फार्मूला से देखेंगे कि ये टॉर्क मैक्सिमम होगा कितना, Q इंटू ई, कब, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। मीन्स कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ये हमको ये हो जाएगा PE इंटू ई। यहाँ पर हमें PE वेक्टर परपेंडिकुलर है E वेक्टर और इसका वैल्यू 0 भी हो जाएगा, मिनिमम 0। वो कब होगा, जब PE वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो किसके, E वेक्टर के। मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, लाई करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उस केस में नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। सो ये जो नेट टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो लाइज करेगा मिनिमम टू मैक्सिमम, 0 टू PE इंटू ई, जहां PE क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मेरे से पूछा जाता है कि भाई आपने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया तो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम कहेंगे ना, एक केस में ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कोलिनियर होगा। तब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा। तो ऑब्वियस है किसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो टॉर्क जो एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कैसे रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि ये रिस्टोरिंग नेचर का टॉर्क आ रहा है। तब मेरे से पूछता है कि भाई नेचर ऑफ मोशन कैसा रहा है, तो नेचर ऑफ मोशन जब रिस्टोरिंग टॉर्क कहीं पर लग रहा है तो ऑब्वियस है कि वो मोशन ऑसिलेटरी टाइप का होगा। अब मैं इसमें आगे बढ़ाता हूं, इफ आई से if theta is very small, then restoring torque is equal to PE into theta। ये मैंने कैसे लिख दिया,
जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो रीस्टोरिंग, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हम लोग तो नेट टॉर्क कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग का मतलब ही होता है कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। जब रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और जब एंगुलर मोशन का बात करेंगे तो टॉर्क लेंगे। तो हमने क्या देखा कि नेट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसका मतलब कि नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, नेचर ऑफ मोशन SHM और ओसिलेटरी। कब, जब ये थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तब। तो हम बोलो क्या निकालेंगे यहाँ से अल्फा, तो हमको पता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बाई आई, वेयर आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं पी ई माइनस थीटा बाई आई। अल्फा हमें मिल चुका है, राइट। ये थीटा बहुत ही छोटा है। तो अब हमें टाइम पीरियड के फॉर्मूला के लिए हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, और इस केस में ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, आपको अच्छे से पता है। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, तो अंडर रूट अल्फा बाई थीटा। ये चीज मैंने SHM में आपको अच्छे से सिखाया था, याद होगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग लिख सकते हैं पी ई बाई आई। आई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, जरा देखेंगे ध्यान से, मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज दैट कि ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू। तो दो केसेस हो सकता है कि जिस रॉड पर ये फिक्स किया गया है वो मासलेस रॉड है, तो इसका कुछ मास होगा ना, तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे। अगर हम कहें L और इसको कहें L तो क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। अगर हो सकता है कि इस रॉड के पास भी अपना मास है तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना जानते हैं। सो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई बाई ओमेगा। ये समझ सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी इंटू। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।